Welcome once again to Supremo classes. How are you? I hope you are fine. Today I am discussing most important expected MCQs on law of tort defamation. Defamation is one of the important topic of law of tort. That's why I am making a separate video on this chapter, defamation. Very important MCQ discussed in this video. This video is very useful for you, so watch this video at the end. Without wasting your time, let's start the video. Defamation. What is defamation? Means publication of false and derogatory statement respecting another person without lawful justification. Defamation is an injury to a reputation, injury to reputation of a person which exposes him to hatred, ridicule or contempt. हम हिंदी में डिफामेशंस को मानहानि या बदनामी, मानहानि करना, बदनामी करना, तो उसे कहते हैं डिफामेशन. डिफामेशन क्या होता है? फॉल्स एंड डेरोगेटरी स्टेटमेंट रिस्पेक्टिंग अनदर पर्सन विदाउट लॉफुल जस्टिफिकेशन. डिफामेशन एंड इंजुरी टू रेपुटेशन होती है. इंजुरी टू रेपुटेशन ऑफ अ पर्सन विच एक्सपोजेस हिम टू हेटर, रिडिक्यूल और कंटेम्प्ट. ओके, नेक्स्ट है civil defamation involves no criminal offense, but on account of this kind of defamation you could sue the person to get legal compensation for your defamation. It is studied under a law of tort, that is as a civil wrong. One of the civil wrong है ये. defamation means सिविल डिफामेशन इन्वॉल्व नो क्रिमिनल ऑफेंस. इसमें क्रिमिनल ऑफेंस नहीं होता, बट ऑन अकाउंट ऑफ दिस काइंड ऑफ डिफामेशन यू कुड शू द पर्सन टू गेट लीगल कॉम्पनसेशन. के लिए हम शू कर सकते हैं फॉर योर डिफामेशन. इट इज स्टडीड अंडर द लॉ ऑफ टॉर्ट, दैट इज अ सिविल रॉन्ग. नेक्स्ट एमसीक्यूज है, how many types of defamation? Libel and slander are two types of defamatory statements. Libel and slander are two types of defamatory statement. Dash is a spoken or oral defamatory statement. Slander जो होता है is a spoken और oral defamatory statement होता है, और libel जो होता है वो permanent form में होता है. परमानेंट फॉर्म, दैट इज मीन्स आप कुछ राइटिंग पब्लिकेशंस करते हैं तो वो परमानेंट फॉर्म, मुही में अगर तुम कुछ कहते हो तो दैट इज अ परमानेंट फॉर्म एंड दैट इज कॉल्ड द लाइबल. नेक्स्ट एमसीक्यूज है, लाइबल मीन्स इज अ रिप्रेजेंटेशन मेड इन अ परमानेंट फॉर्म. अभी बताया था मैंने. लाइबल मीन्स, व्हाट इज लाइबल मीन्स रिप्रेजेंटेशन जो होता है, अपना स्टेटमेंट जो होता है इन अ परमानेंट फॉर्म, दैट मीन्स अ लाइबल. राइटिंग, मुही, पिक्चर्स आर द परमानेंट फॉर्म ये होते हैं, तो ये क्या होता है? ये लाइबल होता है. राइटिंग, मुहिम, पिक्चर्स आर दैट्स आर representation of derogatory statement in this, so that is a libel. Defamatory statement in the transit form like spoken words और gestures. अगर हम कुछ हाथ से कुछ करते हैं, कुछ किसी के खिलाफ उसे बुरा लगे, ऐसे जो गेस्चर्स करते हैं फेसेस पे, तो वो भी क्या होता है? स्लैंडर. डिफामेटरी स्टेटमेंट इन ट्रांजिट फॉर्म लाइक स्पोकन वर्ड्स orally or gestures is that type is slander. In the words विंडफील्ड ने क्या कहा है? इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, पूछी जाती है कभी कभी. डिफामेशन इज द publication of statement which tends to a lower person in the estimation of right thinking members of the society generally, or which tends to make them shun or avoid that person. ये किसने कहा है? In the words of Winfield, defamation is the publication of statement which tends to lower person in the estimation of right thinking members of the society generally, or which tends to make them shun or avoid that person. ओके, नेक्स्ट एमसीक्यूज है, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? इसमें से कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है? लाइबल इज एड्रेस्ड टू द आई व्हाइल स्लैंडर टू द ईयर. करेक्ट है.
In English criminal law, only libel has been recognized as offense. In English criminal law में जो है only libel has been recognized as an offense. Slander is no offense. In Indian law, both are criminal offenses under section 499 and 500 of Indian Penal Code. ये भी करेक्ट है. अंडर लॉ ऑफ टॉर्ट स्लैंडर इज एक्शनेबल एंड लाइबल इज एक्शनेबल पर से, ये भी करेक्ट है. ये सभी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट है. व्हाट इज मीन द यूनियन दो ताना या व्यंग, ताना मारना. अगर हम किसी को ताना मारते हैं, अगर फर्स्ट मीनिंग उसका कुछ प्राइमा फेसी वो इनोसेंट होता है, लेकिन हमें जब वो ताना था ये समझ में आता तो दैट इज अ सेकेंडरी मीनिंग में बी कंसिडर टू बी अ डिफामेटरी. दैट इज मीन द यूनियन दो. Sometimes the statement may be prima facie innocent, but because of some latent or secondary meaning may be considered to be defamatory. Important है. Next है what are essentials of defamation. defamation के essentials क्या क्या है. the statement must be published. the statement published होना चाहिए. the statement must refer to the plaintiff. जो statement है वो refer किसी से होना चाहिए, plaintiff से. defamation must be published होना चाहिए वो defamation. These are the essentials of the defamation. विच डिफेंसेस अवेलेबल अंडर डिफामेशन. डिफामेशन के लिए अंडर टॉर्ट, लॉ ऑफ टॉर्ट में देयर आर 3 डिफेंसेस. जस्टिफिकेशन ऑफ और टॉर्ट, फेयर कॉमेंट एंड प्रिविलेज. दीज आर द 3 डिफेंसेस अवेलेबल इन डिफामेशन, नेमली जस्टिफिकेशन और ट्रूथ, फेयर कॉमेंट एंड प्रिविलेज. नेक्स्ट है parliamentary privilege, judicial proceedings and state communications are absolute privilege में आते हैं. मैं आगे डिस्कस करूंगी इस पे. पार्लियामेंट्री प्रिविलेज, जुडिशियल प्रोसीडिंग्स एंड स्टेट कम्युनिकेशन जो ये होते हो ये एब्सोल्यूट प्रिविलेजेस है. ये डिफेंसेस में आते हैं एब्सोल्यूट प्रिविलेज. what is true about fair comment के कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है. द कॉमेंट मस्ट बी एन एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन rather than the assertion of fact. ये करेक्ट है. द कॉमेंट मस्ट बी फेयर, दैट इज विदाउट मैलिस. ये भी करेक्ट है. द मैटर कॉमेंटेड अपॉन मस्ट बी पब्लिक इंटरेस्ट. ये सभी स्टेटमेंट्स है करेक्ट है, इसलिए ट्रू अबाउट द फेयर कॉमेंट. It is necessary that the statement must have been without malice. Statements अगर necessary to be without malice होना चाहिए. The defendant has to prove that statement was made on a privileged occasion fairly. तो उसे क्या कहते हैं, क्वालिफाइड प्रिविलेज. इट इज़ नेसेसरी दैट द स्टेटमेंट मस्ट बी बीन विदाउट मैलिस. द डिफेंडेंट हैज़ टू प्रूव द स्टेटमेंट वॉज मेड ऑन प्रिविलेज्ड ओकेजन फेयरली. दैट इज अ क्वालिफाइड प्रिविलेज कहते हैं उसे. आंसरिंग द, तो क्वालिफाइड प्रिविलेज के एग्जाम्पल्स है, आपको याद हो जाएंगे ये क्वालिफाइड प्रिविलेज किसे कहते हैं, इससे आपको समझ में आ जाएगा. इस answering the police inquiries, a fair criticism of a published book or film in a review, communication between parents and teacher, communication between employers and employee. These are the qualified privileges. ये सभी जो है ये qualified privileges है. These are the qualified privileges. Answering the police inquiries, a fair criticism of a published book or film in a review, communication between parents and teacher, communication between employers and employee. These are qualified privileges. No action lies for the defamatory statement even though the statement is false or made maliciously. absolute privilege में अगर स्टेटमेंट फॉल्स है, मेड मैलिशियसली भी किया जाता है, तो नो एक्शन लाइज फॉर डिफामेटरी स्टेटमेंट इवन दो द स्टेटमेंट इज फॉल्स और मेड मैलिशियसली. दैट इज अ एब्सोल्यूट प्रिविलेज है.
कौन कौन से एब्सोल्यूट प्रिविलेज आते हैं? विच काइंड ऑफ प्रिविलेजेस दिस आर? ड्यूरिंग जुडिशियल प्रोसीडिंग, बाय गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, बाय लेजिस्लेटर्स ड्यूरिंग डिबेट्स इन द पार्लियामेंट, ड्यूरिंग पॉलिटिकल स्पीचेस इन द पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स एंड कम्युनिकेशन बिटवीन स्पाउसेस. दीज आर द एब्सोल्यूट प्रिविलेजेस है. ये एब्सोल्यूट प्रिविलेज की कैटेगरी में आते हैं. जुडिशियल प्रोसीडिंग by government officials, by legislation during debates in parliament, during political speeches in the parliamentary proceedings and communication between the spouses. These are the absolute privileges. क्रोनोलॉजिकली भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं. क्वेश्चंस क्रोनोलॉजिकली केस लॉज को पूछा जा रहा है, तो इसलिए मैंने ईयर्स के साथ लिया है ये. तो सबसे पहले इसमें आता है बार्ने वर्सेस डीने. नेक्स्ट आता है 37 18 नहीं, फर्स्ट है कैम्पबेल वर्सेस स्कॉटिश वुड. नेक्स्ट है बार्ने वर्सेस, नेक्स्ट है बोनार्ड वर्सेस पेरीमैन. नेक्स्ट है बार्ने वर्सेस डीने 1937. नेक्स्ट है चार्लेस्टन वर्सेस न्यूज ग्रुप न्यूज़पेपर लिमिटेड. उसके बाद है रायलैंड्स टाइम्स वर्सेस टाइम्स न्यूज़पेपर लिमिटेड 1999. डो जोन्स वर्सेस कंपनी वर्सेस गुटनिक 2002. अब जब भी केस लॉ देखते हैं थोड़े ईयर्स पे ध्यान रखना है, कौन सा पुराना है कौन सा उसके बाद है. तो आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में केस लॉज पूछे जाएंगे तो आपको वो क्वेश्चन जल्दी से आ जाएगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल.